What is up, you guys? Welcome or welcome back to my channel. I'm Shantini and you're watching the Curvy Girls Diary. So first of all, a very happy new year, even though it's quite late, but still a very happy new year. I hope all your dreams and goals come true this year. And so for today's video, I'm straight gonna jump into the point. And that is, till last year, as I said, I made my own planner from these kind of notebook. But since this year, I'm using my Alicia Souza planner, which I did a full unboxing and setup. If you haven't watched the video, I'll put the playlist link here in the iCard. I need another like 2 or 3 planners, one for my gratitude, one to journal and one to just brain stuff. So I had these 2 notebooks and also I have this like diary sort of. So I thought why not DIY these notebooks and make them pretty. जरूरी थोड़ी है कि notebook है तो pretty नहीं हो सकता, किसने कहा? So without any further ado, let's start the video. Let's transform these 3 notebooks into pretty journals. Let's go. So for my first DIY today, we are gonna need a lot of washi tapes, Fevicol or any glue. I am using the Fevicol SH here. Then we'll need varnish. I am using the Little Birdie Decor varnish in gloss finish, a brush and of course a notebook. So for the first step, we are gonna put the glue in generous amount on the top of the surface of the notebook or diary in my case. हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो वॉशी टेप है ना वो अच्छे से चिपक जाए, क्योंकि वॉशी टेप का ग्लू उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता और ये जो मेरा सरफेस है ये थोड़ा ग्लॉसी सरफेस है. नाउ विल मेक श्योर दैट द प्रोसेस दैट वी आर डूइंग इट्स इन बैचेस और इन स्टेप्स. नहीं तो क्या होगा कि ग्लू बहुत वेस्टेज हो जाएगा बिकॉज ग्लू ड्राई हो जाएगा. जब तक आप एक पार्ट फिनिश करोगे दूसरे पार्ट का ग्लू ऑलरेडी ड्राई हो गया होगा. सो विल डू इट इन बैचेस. Now once you have put the glue in place, start taking washi tapes and paste them. तो हमें washi tape को ना use करके patterns बनाने हैं. Now I'm starting with the horizontal stripes and I'm starting from the end. Next I'm taking a beautiful star printed blue tape and putting it horizontally as well. Now what I'm gonna do is I'm gonna do the stripes in diagonally. स्टार्ट फॉर्मिंग डिफरेंट पैटर्न. ज़रूरी नहीं है कि एक ही पैटर्न्स हो, हम डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हैं एंड ये एंड में बहुत ही कलरफुल लगेगा. एंड आई बिलीव इट इज़ अ वेरी परफेक्ट आइडिया टू कीप योर किड्स बिजी विथ आर्ट एंड क्राफ्ट. So for the excess portion that we are keeping in the horizontal part, use an X-Acto knife, but make sure अगर आप अपने बच्चों के साथ ये कर रहे हो तो आपका बच्चा ये X-Acto knife ना छुए because वो बहुत sharp होता है and they can get injured. So my design is almost ready. As you can see that I have used a lot of different colored and patterned washi tapes here. कुछ stripes, कुछ horizontal, कुछ vertical, कुछ diagonals हैं. So it's a very eclectic mixture of a colorful boho design, and also I have used the pink washi tape for the borders. Now we are gonna use a white sheet of paper. आप कोई सा भी कलर ले सकते हो और हम कुछ ग्रैटिट्यूड रिलेटेड कोट्स लिखने वाले हैं इसमें. बिकॉज ये मेरा ग्रैटिट्यूड जर्नल होगा तो मैं ग्रैटिट्यूड रिलेटेड कोट्स लिख रही हूँ. आपको ये जिस भी रीज़न से यूज़ करना है उससे रिलेटेड कोट्स लिख सकते हैं. वैसे ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है. अगर आपको कुछ भी नहीं लिखना है तो आप बस यहीं पे रुक जाएं और वो जो पूरा डिज़ाइन है उसको भर के आने दें. But I have written 3 most simple yet most powerful and meaningful words in the universe. Those are thankful, grateful and blessed. I used a Fevistick to stick those words onto the paper because पहले मैंने ना Fevicol MR यूज़ करना स्टार्ट किया पर वो थोड़ा मेसी हो जा रहा था और उससे वो पेपर्स फटने के चांसेस थे. So I used Fevistick instead और वो अच्छे से स्टिक हो गया. Now we'll let the glue set for around an hour maximum. तब तक वो ड्राई हो जाएगा ग्लू and then we'll use the varnish and I'll show you the final result. So for the next DIY, I'm taking this notebook that I had for few years now and I'm gonna be using some white papers. If you can, try to get some papers that are thick. You can take any colors you want. White ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर मेरे पेपर्स ना थोड़े थिन थे तो मुझे 2 लेयर्स यूज़ करने पड़े इस पेपर के. That you're gonna see in a moment.
विद दिस फाइनली वो टाइम आ गया है जब मैं ये क्यूट सा कार्डस्टॉक वॉल आर्ट यूज़ करने वाली हूँ. आई बॉट दिस लास्ट ईयर फ्रॉम अलीशा सूजा's वेबसाइट एंड it has the cutest doodle of a girl gushing over doggos. I have been waiting to use this for so long now. Firstly, we'll be using the white papers as a background and paste it using Fevicol. ये हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पिछले DIY में हमने वॉशी टेप को glue किया था. So I'm gonna put a generous layer of Fevicol on top of the notebook cover and then use the white sheets. ना यहाँ पे मुझे 2 layers of white sheet यूज़ करना पड़ा क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरा पेपर थोड़ा थिन था. If you have a thicker paper, you will only gonna need 1 layer. पेपर को पेस्ट करते टाइम जो भी बबल्स आ रहे हैं, डोंट वरी अबाउट देम, दे विल बी टेकन केयर ऑफ. Now I'm gonna take the artwork or the doodle from the Alicia Souza's website and I'm gonna paste it according to the plan that I have in my brain. So I'm gonna be using it on the lower side of the notebook क्योंकि मुझे ऊपर कुछ लिखना है. आप चाहो तो मिडिल में भी यूज़ कर सकते हो. So what I'm gonna do is I'm gonna keep the paper where I want to put it and then use some weights over it and trace the paper accordingly ताकि हम वो ट्रेसिंग के अंदर अच्छे से ग्लू लगा सके और कार्डस्टॉक के पीछे भी ग्लू लगाना है ताकि वो अच्छे से चिपक जाए. सो आई हैव यूज्ड द फेविकॉल SH है. आप कोई सा भी स्ट्रॉन्ग ग्लू यूज़ कर सकते हो. देन आई यूज्ड अ ग्रीन टेप टू बॉर्डर द आर्टवर्क. ये इलेक्ट्रिकल टेप्स है ना जो आता है जो वायर्स को मोड़ने में काम आता है. सो आई हैड दैट सो आई एम यूजिंग इट. यू कैन यूज़ एनी कलर ऑफ वॉशी टेप यू वांट और यू कैन ऑल्सो कीप इट जस्ट लाइक दैट. पर क्या होता है ना कि अगर आप टेप लगा दोगे तो वो थोड़ा फिनिशिंग अच्छा आ जाता है. देन ऑल्सो आई वेंट अहेड एंड यूज्ड ब्लू वॉशी टेप ऑन द बॉर्डर ऑफ द नोटबुक. You can go a step ahead and use the same color that you have put the washi tape. और वो जो spirals के बीच में जो कॉपी का असली वाला पेंटिंग दिख रहा है ना, you can color them too, but it was not bothering me, so I didn't do it. If you want, you can totally go ahead and do that. Now I'm simply gonna use the markers to write get SHIT done, but I'm leaving the place for I and I'm using a star ka sticker in place of I. Then I'm just gonna use my little Verdi ka decor varnish and varnish the whole thing up and show you the final result. So for the last DIY of today's video, I'm using this notebook with spiral binding and this scrap cloth. ये मेरी मम्मी के साड़ी का ब्लाउज़ पीस है जो उन्होंने मुझे दे दिया DIYs बनाने के लिए. बट आप कोई भी पुराना सा कपड़ा ले सकते हो. मैंने इसमें पिछले DIY के जैसे शीट पेस्ट कर दिया बैकग्राउंड के लिए और मैंने इस बारी मरून कलर का शीट यूज़ किया और सिर्फ एक ही शीट से काम हो गया, मुझे डबल लेयर नहीं लगाना पड़ा. नाउ you'll see my failed attempt to put a magnetic closure for this notebook. तो एक्चुअली मेरा प्लान था कि मेरे पुराने बुकमार्क्स के मैग्नेट को मैं यहाँ क्लोजर के लिए यूज़ करूँ. मैंने बनाया भी बट एंड में यू विल सी कि मैंने उसे कट कर दिया क्योंकि वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था. दिस शोज़ कि हाउ थिंग्स वोंट ऑलवेज बी इन योर फेवर बट यू स्टिल गॉट अ हसल मैन. तो मैंने एक मैग्नेट को फ्रंट में लगाया और एक को पेपर स्ट्रिप पे और पेपर स्ट्रिप को नोटबुक के बैक में चिपका दिया. फिनिशिंग अच्छा रहे इसके लिए मैंने उसके ऊपर एक पेज भी बैक साइड से चिपका दिया. देन आई डेकोरेटेड द बैक विद अ पर्पल पेपर एंड सम वॉशी टेप्स. ऑल्सो मैंने एक कपड़े का टुकड़ा लिया छोटा सा और उसको बाहर के साइड से चिपका दिया ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे. सो नाउ फॉर द फ्रंट साइड मैंने क्या किया, वही सेम कपड़े का टुकड़ा निकाला उस स्क्रैप ब्लाउज़ के पीस से और इस बार थोड़ा थिकर विड्थ में मैंने कपड़ा काटा एंड देन आई स्टार्टेड पेस्टिंग इट फ्रॉम द स्पाइरल बाइंडिंग का साइड. Now just a pro tip, when you're using a hot glue, please don't use your fingers to press on the glue. You'll have serious burn injuries. I'm talking from an experience. Instead आप क्या करो, आप कोई हैवी सा चीज़ लो जिससे आप ग्लू को थोड़ा प्रेस कर सको. तो जैसे ग्लू थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा देन यू कैन यूज़ योर फिंगर्स टू प्रॉपरली स्टिक इट. नाउ मैंने वो एक साइड से पहले चिपकाया, देन आई मेड द क्लॉथ वेरी नीट एंड टाइडी एंड देन जो बाहर का साइड था उसको मैंने अंदर की तरफ टक कर दिया ताकि वो फिनिशिंग अच्छा सा दे. सो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ था उसको मैंने इनर साइड में टक कर दिया, उसको वहाँ पे हॉट ग्लू से पेस्ट कर दिया और ऊपर एक प्लेन शीट चिपका दिया.
एंड मेरा इतना मूड ख़राब हो गया ये इस DIY से, बिकॉज़ कभी कभार जैसे होता है ना कि DIY का आइडिया आपके दिमाग में है, सब सेट है, बट वो आपके दिमाग में जैसा प्लान है वैसा नहीं होता है, एंड इट जस्ट किल्स योर मूड। तो मेरा प्लान बिल्कुल सही था, बट आई थिंक मैंने मटेरियल्स गलत ले लिए, इसकी वजह से वो DIY जैसे मैं चाहती थी वैसे नहीं आया। सो एंड में मुझे ये जो स्ट्रैप है और जो मैग्नेटिक क्लोजर है इतना बक करने लगा कि मैंने बस उसको काट दिया और सामने वाले को निकाल दिया। इंस्टेड मैंने जो विजन बोर्ड के लिए पिक्चर्स प्रिंट आउट करवाए थे उनमें से एक पिक्चर यहाँ पे चिपका दिया। या इवन दो दिस वाज टेक्निकली अ फेल्ड DIY, स्टिल आपको मैं फाइनल प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। सो लेट्स गो। Do hit the like button, comment, share and subscribe if you haven't already, and I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.